everyone. So we are starting with chapter 2 of portfolio management. The chapter is about portfolio construction and selection. So what we will discuss in this chapter is about the two approaches of portfolio construction and selection, that is traditional approach and modern approach. And we will also discuss about bond portfolio strategy and active portfolio strategy in detail. So firstly, let's start with the meaning of portfolio construction and selection. Friends, do you know that now in recent time only it is about few weeks earlier that Ratan Tata has made a portfolio in which he has diversified his investment in 3 airlines, that is Vistara Airlines with 51% stake, and Air Asia with 83.67% stake, and Air India with 100% stake. So do you know why this diversification is done? We have already discussed about this in our earlier videos, that diversification is done to reduce the risk and to make our portfolio the more efficient one. Now we all know that portfolio is constructed by determining objectives, identifying different constraints, and selection of securities, and doing asset mix decision. Now as we are discussing about the two approaches, that is traditional and modern approach. Why we discuss two approaches? Traditional is one that is followed traditionally from ancient times, and modern approach is given by some scientists or some management consultants or some professors, you can say. So traditional portfolio theory, what does it say? It considers only two parameters, that is risk and return. In this traditional theory, we assume that the correlation in return of securities is not considered. ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, दो पैरामीटर रिस्क एंड रिटर्न को ही हम लोग मान के चलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. अब मेन इसके बाद है मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच जो है वो हैरी मार्कोविट्स ने दी थी. उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने फोकस करा था एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर पर, और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि हम इसमें कोरिलेशन इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ को कंसिडर करेंगे. ठीक है. अब मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ लिया, ट्रेडिशनल की मीनिंग के बारे में पढ़ लिया. अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल के फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहला फीचर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच का यही है कि हम इवेल्युएट करते हैं इसमें सिक्योरिटीज़ को इंडिविजुअली. तो इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज डन इंडिविजुअली इन ट्रेडिशनल अप्रोच. देन ओनली टू पैरामीटर्स, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न, आर कंसिडर्ड इन ट्रेडिशनल अप्रोच. After that, third point is diversification. We do diversification to reduce the risk. And then fund allocation. How do we allocate fund, or how we make asset mix decision? We make asset mix decision by proper matching of risk and return. And then risk consideration. How risk is considered? We consider risk in totality without any classification of systematic and unsystematic risk. Now we have discussed the features of traditional approach. Now we will discuss about the steps for portfolio construction in traditional approach. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा है डिसाइडिंग अबाउट पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव्स. की पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों को डिसाइड करना है. पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था, अपना प्रीवियस वीडियो जो है मेरी, उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी ऑफ इनकम हमारी है या नहीं है. सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट देखते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी के लिए इन्वेस्टर जो है वो बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इस तरह की इन्वेस्टमेंट में, डेब्ट्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसे लगता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होगा. ठीक है. तो उसके बाद अगर उसका ऑब्जेक्टिव है इनकम की रेगुलरिटी, वो चाहता है कि इनकम जो है उसे रेगुलर मिलती रहे, तो भी वो डिबेंचर जैसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा. अगर ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन है तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसे लगता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है हमारी. इसके बाद है लिक्विडिटी. अगर लिक्विडिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है तो कुछ परसेंट स्टेक वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में रखेगा जिसे इजीली लिक्विडिफाई हम कर सकें, मतलब कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा अगर लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव है. टैक्स सेविंग अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टर. और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेकुलेशन एंड हेजिंग है तो हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे. इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में क्या है कि हम लोग लिमिट डिसाइड करता है इसमें हमारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं. अब लिमिट्स किस बेसिस पे डिसाइड करनी है? एक तो हम लोग देखते हैं टाइम होरिजन के बेसिस पर, मतलब कि लॉन्गर टाइम पीरियड है या शॉर्टर टाइम पीरियड है. लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर हम जैसे रियल एस्टेट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर जो मतलब लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. अगर ऑब्जेक्टिव हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे.
फिर इसके बाद है कि हमारा क्या कहते हैं फ्यूचर कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है, उसके रिगार्डिंग जब बात करते हैं तो वो हमारा सेकंड स्टेप में होता है कि मतलब अगर फ्यूचर कमिटमेंट्स को ध्यान में रख के हम अपनी लिमिट्स डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन रिस्क रिटर्न क्राइटेरियन। मतलब एनालाइज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, और किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं हम लोग, रिस्क रिटर्न क्राइटेरियन के बेसिस पर। इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास 3 तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं। फिर है इंडस्ट्री एनालिसिस में हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं, और कंपनी एनालिसिस में कंपनी के रिगार्डिंग। मार्केट एनालिसिस में छोटी मोटी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उन्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि मार्केट एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केट में जो चेंजेस होते हैं वो इवन फॉर अ मिनट भी चेंज हो सकती है हमारी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू। तो हम इसमें देखते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो वैल्यू है वो अपवर्ड शो कर रही है, ट्रेंड या डाउनवर्ड, उसके बेस पर हम एनालाइज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट। इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था 1987 की बात है जब जीडीपी हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की वजह से इंक्रीज़ हुआ था। फॉर एग्जांपल आप अभी भी देख सकते हो, अभी कोरोना टाइम पीरियड में भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो था इंडस्ट्रीज़ का उसने अच्छा ग्रो करा था एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो इंडस्ट्री एनालिसिस भी करते हैं। फिर कंपनी एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का पास्ट ट्रेंड क्या रहा है और कंपनी का प्रेजेंट में क्या उसके कॉम्पिटिटर्स हैं या क्या नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो इन्वेस्टर है वो ये डिसीजन लेने से पहले छोटी मोटी ये जो एनालिसिस होती हैं, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होती तो छोटी हैं लेकिन उसके जो प्रोजेक्ट है उस पर एक लार्ज इम्पैक्ट डालती हैं, इन सबको कंसिडर करता है। इसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। डाइवर्सिफिकेशन में वही है कि डाइवर्सिफाई करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, जैसे रतन टाटा ने करा था अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट उसमें एयरलाइंस में। किस लिए करते हैं डाइवर्सिफिकेशन? टू रिड्यूस द रिस्क। और एलोकेशन ऑफ फंड्स में क्या है, एसेट मिक्स डिसीजन लेगा इन्वेस्टर, अपने फंड्स को एलोकेट करेगा कि शेयर में कितना डालना है, बॉन्ड में कितना डालना है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में कितना डालना है। फिर इसके बाद है जब हमारा एलोकेशन ऑफ फंड्स हम लोगों ने कर लिया तो पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। पोर्टफोलियो को कंप्लीट भी कर दिया और एग्जीक्यूट भी कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद हम पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ व्हाट? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, चेक करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता चल जाता है कि जो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई लॉस तो नहीं होने वाला, और अगर लॉस होने वाला है तो हम उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए किस स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में पता चलता है। फिर इसके बाद हम पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं, जहां हमें लगता है कि यहाँ कमी रह जाएगी उस कमी को पूरा करते हैं, खामी को दूर करते हैं, और ये रिजल्ट्स ऑफ अप्रेजल पर डिपेंड करता है हमारा पोर्टफोलियो रिवीजन। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट लो यील्डिंग सिक्योरिटीज़ विद हायर रिस्क। जो सिक्योरिटीज़ यील्ड तो हमें कम प्रोवाइड कर रही है, रिटर्न्स हमें कम प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन रिस्क उनमें ज़्यादा है, तो उन सिक्योरिटीज़ को रिप्लेस कर देंगे विद हाई यील्डिंग सिक्योरिटीज़, उन सिक्योरिटीज़ के साथ जो कि हाई यील्ड प्रोवाइड कर रही हैं हमें विद लोअर लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो गया, हमारा रिवीजन भी हो गया, तो हमने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इसके बाद मॉडर्न अप्रोच पढ़ लेते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की। मॉडर्न अप्रोच पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की हैरी मार्कोविट्स ने दी थी। मार्कोविट्स की थ्योरी जो है वो अप्लाई करती है मोर टू अ सिलेक्शन ऑफ कॉमन स्टॉक्स पोर्टफोलियो। कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में मार्कोविट्स थ्योरी जो है वो फोकस करती है कि तुम कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करो रादर देन टू बॉन्ड पोर्टफोलियो। अब इसके बाद जो है मॉडर्न पोर्टफोलियो अप्रोच फेवर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर के कॉन्सेप्ट को फेवर करती है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज व्हाट? इट इज़ द पोर्टफोलियो विद मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। और एफिशिएंट फ्रंटियर इज व्हाट? It is a line that represents all the efficient portfolios plotted on risk and return graph। ठीक है, इन दोनों को कौन फेवर करता है? मॉडर्न पोर्टफोलियो अप्रोच। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क एंड कोरिलेशन इन सिक्योरिटीज़। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के बारे में तो वो भी बात कर लेता था, लेकिन उसमें कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम कंसिडर नहीं करते थे ट्रेडिशनल में, लेकिन इसमें कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड। इसके बाद आई डोंट थिंक कि इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है।
अब एक्सपेक्टेड रिटर्न का हम लोग मतलब पढ़ लेते हैं, 2 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है कि एवरेज रिटर्न सिक्योरिटी पर क्या मिलेगा, और एक्सपेक्टेड रिस्क का मतलब होता है कि वेरिएबिलिटी रिटर्न में कितनी आएगी अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से मेजर करें। एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन्स एनी एवरेज रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी एंड रिस्क मीन्स वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा। इसके बाद है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं मॉडर्न अप्रोच के, कि किस प्रिंसिपल्स पर हमारा मॉडर्न अप्रोच बेस्ड है। हमारे इधर 7 प्रिंसिपल्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच के। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क कहता है कि सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करना है बाय कंपेयरिंग रिस्क एंड रिटर्न्स, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द रिटर्न। सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर नहीं, रिस्क और रिटर्न दोनों को बेस बनाकर हम लोगों को सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग करते हैं रिस्क को मिनिमम करने के लिए, और जो रिटर्न होता है सिक्योरिटीज़ का हम ध्यान रखते हैं डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पे कि जो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ हो दैट शुड बी नेगेटिवली कोरिलेटेड और दे शुड हैव परफेक्ट कोरिलेशन। हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव कोरिलेटेड होना चाहिए रिटर्न सिक्योरिटीज़ का, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दैट शुड बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज़ रिटर्न। ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। उस पोर्टफोलियो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे के इफेक्ट को। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिस्क जो है सिक्योरिटी का, इट मीन्स रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एसोसिएशन विद इट्स मार्केट वाइड फैक्टर। मार्केट के फैक्टर से क्या रिस्क हो सकता है हमारी सिक्योरिटी पे। मार्केट रिस्क जो होता है उसे हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टमेटिक रिस्क। इट अफेक्ट्स ऑल द शेयर्स ऑफ अ मार्केट। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एडवोकेट्स दैट सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज शुड बी डन बाय कंसिडरिंग द मार्केट रिस्क। हम बोलते हैं कि मार्केट रिस्क को कंसीडर करके ही सिलेक्शन करना चाहिए सिक्योरिटीज़ का। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल रिस्क। जो मार्केट रिस्क है वो क्या है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल रिस्क। टोटल रिस्क का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्केट रिस्क, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक इज नोन एज मार्केट रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक इज नोन एज डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ओके, दैट इज फर्म स्पेसिफिक। अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ बीटा। प्रिंसिपल ऑफ बीटा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ बीटा बात करता है कि हमारी सिक्योरिटी में क्या चेंजेस होंगे मार्केट मूवमेंट्स के साथ। इट रिप्रेजेंट सेंसिटिविटी ऑफ बीटा रिप्रेजेंट सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट के साथ क्या हमारी सिक्योरिटी में सेंसिटिविटी चेंजेस होंगे। अगर बीटा हमारा 1.25 है तो हम बात, इसका मतलब क्या है कि 1.25% चेंज होगा रिटर्न ऑफ शेयर में अगर मार्केट में 1% चेंज है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा के बेसिस पर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं शेयर की, दैट इज़ बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा लेस देन 1 एंड बीटा इक्वल टू 1। बीटा की बात कर रहे हैं तो एक तो हो गया बीटा ग्रेटर देन 1, एक हो गया बीटा लेस देन 1, एक हो गया बीटा इक्वल टू 1। अगर ये है तो ये इसका मतलब क्या है, एग्रेसिव शेयर है हमारा। लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, हमारा शेयर जो है वो डिफेंसिव है, मार्केट के अपोजिट जा रहा है। और अगर इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स न्यूट्रल है हमारा शेयर मार्केट में। ठीक है। अब बीटा की हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का प्रिंसिपल क्या कहता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का प्रिंसिपल कहता है कि रिस्क और रिटर्न को दोनों को ध्यान में रख के अच्छे से हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। ये जो थ्योरी है बिलीव करती है कि इन्वेस्टर्स रेशनल हैं और फॉलो द फंडामेंटल ऑफ, वो क्या फंडामेंटल को फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि रिस्क जो है वो हायर अगर होगा तो रिटर्न भी हमें हायर मिलेगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई तुम मार्केट के रिस्क को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, लेकिन तुम जो दूसरा वाला रिस्क है, फर्म स्पेसिफिक रिस्क है, दैट इज़ नोन एज डाइवर्सिफिएबल रिस्क, जिसको हम अनसिस्टमेटिक रिस्क भी बोलते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप लोग अवॉइड कर सकते हो, इसलिए ट्राई टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि मार्केट रिस्क को तो हम हटा ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, तुम बस ये सोच के चलो कि पोर्टफोलियो को मार्केट रिस्क ही बियर करना है, दूसरे वाले को तो तुम जितना हो सके एलिमिनेट करके चलो, अवॉइड करके चलो। ठीक है। तो कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं ये मॉडर्न अप्रोच में कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो हमारा रिड्यूस कर देता है कौन से रिस्क को, डाइवर्सिफिएबल रिस्क को, फर्म स्पेसिफिक रिस्क को, अनसिस्टमेटिक रिस्क को। एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो ये मान के चलता है कि द पोर्टफोलियो विल बियर ओनली मार्केट रिस्क। ठीक है। इसके बाद है बॉन्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, जो कि हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, पैसिव, इम्यूनाइजेशन और एक्टिव स्ट्रेटेजी। पैसिव स्ट्रेटेजी
इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी और एक्टिव स्ट्रेटेजी। अब हमारे पास जब बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बॉन्ड वाला पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पैसिव स्ट्रेटेजी कहते हैं कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी और इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजीज के दो पार्ट्स हैं। बाय एंड होल्ड कहते हैं कि तुम बाय करो और अपना उसी पोर्टफोलियो के साथ स्टक रहो, उसी के साथ रहो, उसे सेल मत करो साथ के साथ, फिर तुम्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा गेन होगा। इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी कहती है पोर्टफोलियो जब आप बनाते हो तो वो मिरर इमेज होनी चाहिए एक वेल नोन इंडेक्स की, कोई जाना माना जो पोर्टफोलियो है उसकी, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया। इसके बाद है इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी। इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद है हमारी क्या, इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी ये भी बोलती है कि जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है उसे कंटिन्यूअली मैच करते रहो ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के साथ, कहीं ऐसा ना हो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसके बाद है हमारी एक्टिव स्ट्रेटेजी। एक्टिव स्ट्रेटेजी मार्केट की मूवमेंट्स के साथ चलती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि बॉन्ड के प्राइजेस, ध्यान रखो इसमें ऐसा मान के चलते हैं कि बॉन्ड के प्राइजेस और इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन होगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग एक्टिव बॉन्ड मैनेजर ऐसा बाय करेगा उन बॉन्ड्स को जिसका उसे लगता है कि इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, मतलब जिसका लगता है इंटरेस्ट रेट फॉल होने वाला है उन्हें बाय कर लेगा और सेल कर देगा जिनका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला होता है। इसके बाद अप्रोचेज आ गई हमारी किससे रिलेटेड, एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। तो एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच होती हैं। पहले इसका वो देख लेते हैं ओवरव्यू कि एक्टिव मतलब राइडिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट, ठीक है। हेयर द इन्वेस्टर्स ट्राइव टू आउट परफॉर्म ए बेंचमार्क इंडेक्स। इधर इन्वेस्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करे, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी ध्यान में रखे, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड बेसिस, ठीक है। अप्रोचेज हमारे पास 2 तरीके की अप्रोच होती हैं एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल अप्रोच में 3 टाइप्स होते हैं, स्क्रीन रोटेशन, सिक्योरिटी सिलेक्शन और यूज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। टेक्निकल अप्रोच जो है इसमें कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी है और मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। पहले फंडामेंटल में स्क्रीन रोटेशन की बात कर लेते हैं। जो ये सॉरी दिस इज़ नॉट स्क्रीन रोटेशन, इट इज़ सेक्टर रोटेशन। ये सेक्टर रोटेशन है, इसे सही कर लेना। तो सेक्टर रोटेशन में हमारा क्या होता है, सेक्टर रोटेशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग द वेटिंग ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर असेस्ड आउटलुक। एक हम लोग असेस्ड आउटलुक प्रिपेयर करते हैं और उस असेस्ड आउटलुक के बेस पर हम लोग वेट्स को शिफ्ट कर देते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। इन रिलेशन टू द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो के रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो वन में ओवरवेट द सेक्टर्स, कोई सेक्टर्स को ओवरवेट कर सकता है अपने पोर्टफोलियो में अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। ओवरवेट कर सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, किसमें, सेक्टर रोटेशन में। इसके बाद है सिक्योरिटी सिलेक्शन। सिक्योरिटी सिलेक्शन में क्या है, आइडेंटिफाई द स्टॉक दैट इज़ अंडर वैल्यूड। उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं हम जो अंडर वैल्यूड होगा, एंड ओवरवेट इट अकॉर्डिंग टू मार्केट पोर्टफोलियो, और उसे ओवरवेट कर मतलब जो हमें लगता है अंडर वैल्यूड है उसे उठाएंगे और उसे मार्केट के साथ ओवर वैल्यू कर देंगे। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब कि जो हमें स्टॉक लगता है ओवरवेट है उसे उठाओ और उसे अंडर वैल्यू कर दो। तो सिक्योरिटी सिलेक्शन में ये करते हैं। फिर इसके बाद है कि अच्छा ऐसे क्यों करते हैं, मार्केट में अगर अंडर वैल्यू लग रहा है, हमें कोई चीज़ जा रही है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ओवर वैल्यू कर देंगे, ठीक है। कोई चीज़ ओवर वैल्यू जा रही है तो उसे क्या करेंगे, मार्केट से ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये भाई उसी की बात करता है, क्योंकि एक्टिव है हमारी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगी, सिक्योरिटी सिलेक्शन में ये आएगा। फिर है यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना चाहिए, किस लिए, टू अचीव सुपीरियर रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट कैन बी स्पेशलाइज टू मेक अ पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए चाहे आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लगा लो, चाहे ग्रोथ स्टॉक्स लगा लो, चाहे वैल्यू स्टॉक्स लगा लो, चाहे साइक्लिकल स्टॉक्स लगा लो, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो स्पेशलाइजेशन है आपको हेल्प करती है टू मास्टर एन अप्रोच एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। किसी अप्रोच को मास्टर करने के लिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम स्पेशलाइज्ड अप्रोच को यूज़ करते हैं। अब किसी भी चीज़ को स्पेशलाइज किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज अगर हम होते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक होता है, क्या, कि एक टाइम पीरियड के बाद हमारा जो वो स्किल है वो ऑब्सोलीट हो सकती है। तो ये हमारे इसमें ड्रॉबैक होता है कि द डिमेरिट ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन अप्रोच इज़ दैट ओवर द टाइम पीरियड इट मे बिकम ऑब्सोलीट।
नाउ द टेक्निकल अप्रोच वी आर गोइंग टू डिस्कस। टेक्निकल अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रेरियन और मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी कहती है कि अपोजिट चलो, मतलब कि बाय करो जो बियरिश में चल रहा हो और सेल कर दो जो बलिश में चल रहा हो। बल क्या होता है? बल मतलब इन्फ्लेशन, ये बोलता है उल्टा कि जो बलिश में चल रहा है उसे सेल कर दो और बाय कर लो उसे जो बियरिश में चल रहा है। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट स्टॉक रिटर्न्स आर मीन रिवर्टिंग। ये स्ट्रेटेजी इस बेस पर बेस्ड है कि स्टॉक रिटर्न जो है वो मीन रिवर्टिंग है। कुछ लोग होते हैं ना जो उल्टे चलते हैं, तो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी में वही आ जाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि अच्छा अब इस चीज़ की वैल्यू डाउन जा रही है तो अब इसी को खरीद लो। क्यों? क्योंकि अब ये डाउन जा रही है तो अब इसको खरीद लो, खरीदने में फ़ायदा, फिर कुछ टाइम बाद ये राइज होगी। तो इस तरीके से जो सोचते हैं वो बियरिश में आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो इसे सेल कर दो। जबकि अगर कोई चीज़ की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो अब डिक्रीज़ होगी। बलिश इज द स्टेज व्हेन इट इज़ एट इट्स मैक्सिमम लिमिट, तो उसके बाद उसे डिक्रीज़ होना होता है। एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें, बट कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी में हम लोगों को अपोजिट डिसीजन लेते हैं। मोमेंटम स्ट्रेटेजी बात करती है किस बारे में? मोमेंटम कहती है कि तुम रिसेंट ट्रेंड्स को देखो, प्राइसेस के क्या वो कंटिन्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट एज्यूम्स दैट जो रिसेंट ट्रेंड हमारे मार्केट में चल रहे हैं हम ऐसा मान के चलते हैं कि वही कंटिन्यू होंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे रियल एस्टेट है, उसमें डाउनफॉल चल रहा है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि रियल एस्टेट में डाउनफॉल ही चलता रहेगा कुछ टाइम पीरियड तक। मोमेंटम मतलब कि हमने मान लिया कि एक ही मूवमेंट जो आज चल रही है वही कुछ टाइम पीरियड तक चलती रहेगी। इसमें हम मानते हैं हॉट स्टॉक विल स्टे हॉट एंड कोल्ड विल स्टे कोल्ड। अब इसके बाद है इट मे बी ड्यू टू द मार्केट्स अंडर रिएक्शन। ऐसा मान सकते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन को मार्केट इजीली रिएक्ट नहीं कर रही है। इसमें ऐसा मानते हैं कि रिसेंट ट्रेंड जो है वही परसिस्ट होगा, वही चलता रहेगा। ये हो गई हमारी फंडामेंटल अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच दोनों एक्टिव स्ट्रेटेजी के अंदर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 2 पॉपुलर मैनेजमेंट स्टाइल। हाँ जी, तो आ जाइए यहाँ पर। ये 2 पॉपुलर मैनेजमेंट स्टाइल, इन्हें भी एक्टिव मैनेजर ही यूज़ करता है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के अंदर। 2 कौन कौन से स्टाइल हैं जो फेमस हैं? इसमें एक है वैल्यू मैनेजमेंट और एक है ग्रोथ मैनेजमेंट। वैल्यू मैनेजमेंट में हमारा बाय करते हैं आउट ऑफ फेवर स्टॉक्स को, मतलब बीटा जब लेस देन 1 हो तब हम स्टॉक को बाय कर लेते हैं। डिफेंसिव शेयर्स को बाय करते हैं वैल्यू मैनेजमेंट में। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा जो ध्यान रहता है वो ये रहता है कि लो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होनी चाहिए, लो प्राइस अर्निंग रेशियो होना चाहिए, लो प्राइस बुक रेशियो होना चाहिए, हाई डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। तो हम वैल्यू मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारा डिविडेंड यील्ड जो है वो कम है और प्राइस बुक रेशियो हायर है तो हम लोग ग्रोथ मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है ग्लैमरस स्टॉक को। ठीक है, बाय करते हैं हम इसमें ग्लैमरस स्टॉक को, ग्रोथ स्टॉक की बात करके चलता है ये। इसमें ऐसा मानते हैं, ग्लैमर की बात कर रहा है तो बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, बीटा जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब जो वैल्यू मैनेजमेंट है जनरली एक्टिव मैनेजर्स उसी को यूज़ करते हैं। इट आउट परफॉर्म्स द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ मैनेजमेंट। इसके बाद ये कॉन्ट्रेरियन और मोमेंटम स्ट्रेटेजी दोनों हमने अच्छे से डिस्कस कर ही ली, इसमें सच कुछ है नहीं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हमने आज क्या डिस्कस करा? हमने डिस्कस करा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड सिलेक्शन के प्रोसीजर इन बोथ दी अप्रोचेस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल किसने दी? ट्रेडिशनल तो अर्लियर टाइम से चलती आ रही है। एंड मॉडर्न किसने दी? हैरी मार्कोविट्स ने दी। उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड पोर्टफोलियो और एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करा। फिर एक्टिव में हमने सब पार्ट्स फंडामेंटल अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच पढ़ी। फंडामेंटल में हमने सेक्टर रोटेशन, सिक्योरिटी सिलेक्शन और यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा। टेक्निकल में हमने कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी और मोमेंटम पढ़ा। So guys, don't forget to like, share and subscribe my channel for such an amazing concept. I hope these videos will be helpful to you.